crop. B. That is the first step before growing crop is Preparation of soil. Preparation of soil. preparation of soil. C. That is damaged seed wood. Flood. Floor. Now for growing a crop, sufficient sunlight and Water. and Nutrients. yes, water, nutrients are required. Second, so kharif crop Paddy and maize. फर्स्ट का हो जाएगा टी, सेकंड का Gram P. सही है, तो सेकंड का डी. थर्ड, सभी. that is chemical fertilizer. Sir, B. Urea and sir. Urea and phosphorus. It is B. Fourth, Sir, एनिमल स्पीकर का होगा ये, ठीक है. फोर्थ का हो जाएगा सी एंड फिफ्थ. फोर्थ ही है. अब देखो थर्ड क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप. Paddy and maize. खरीफ क्रॉप, पैडी एंड maize and रबी क्रॉप. Wheat and Wheat and हाँ. Wheat and gram. Fourth question, write a paragraph in your words on each of the following. देखो इन सभी पे हम लोगों ने लिखा दिया है. Preparation of soil, weeding के लिए क्या करते हैं, sowing के लिए क्या करते हैं, ठीक है कि नहीं? Yes, और sir. threshing के लिए क्या लिखोगी? Threshing के लिए, कि threshing का मतलब है harvesting. Sir, a machine used to separate grains from chaff. हाँ. Is called Is called this. separating. The separation of is called seeds threshing. from gram ठीक है. is threshing. Threshing. तो ये प्रोसेस है and that machine is called Thresher. Thresher. ठीक है कि नहीं? Sometime it is combined with harvester Yes. and now it is called combined. तो threshing पे मैं लिखा देता हूँ. बाकी तो सबसे आप लोगों को मालूम है. फोर्थ पे लिख लो threshing में. Threshing. So process of removal of chaff from grain is called threshing. इसको threshing कहेंगे. And the machine is called Thresher. हाँ, Or combine. machine is called thresher. अगर मान लो इसको हार्वेस्टर के साथ मिला दो, To combine. So combine. हाँ, thresher. Sometimes it is sometimes thresher and harvester are in same machine. उस कभी कभी एक ही मशीन में दोनों हो जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? Then it is called combine. It is called combine. How fertilizers are different from manure. तो उन दोनों का डिफरेंस लिख लेना. 5 हम लोगों ने करा है ना, Yes, तो sir. ये कवर्ड, क्योंकि आपको डिफरेंस लिखना है. डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स लिखा है कुछ So पॉइंट. fertilizers are in aerobic soil हाँ, and manure is डिफरेंस बिटवीन मैन्योर तो notes लिखा है. एंड फर्टिलाइजर, यही लिख लेना. Sir, हमें notes का मिला. नोट्स आप को नहीं मिले? So मिले मतलब हम्म? सर मैथ्स के सेकंड चैप्टर
Yes, sir. मैथ्स के सेकंड चैप्टर के में दिए गए ना, मैथ्स के सेकंड चैप्टर के में दिए गए। और फर्स्ट वाले ये मिले कि नहीं? Yes, sir. हाँ तो वो मिल जाए। नाउ अब देखो, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर। सो इरिगेशन लिखो, इरिगेशन क्या है, एंड The supply of the regular supply वाटर, of हाँ बोलो बोलो, the regular supply of water on a regular interval of time is known as irrigation. सही है। सो इरिगेशन लिखिए, so the supply of water to crops, supply of Water to crop water at regular interval. at The regular interval. regular interval of time is called irrigation. और दो मेथड पूछे गए हैं, Sir, drip system और sir sprinkler system. ठीक है, तो मॉडल मेथड पूछे गए हैं। नहीं sir, वो ऐसे. अच्छा अच्छा, कंजर्व वाटर ना, Yes Sir, sir. drip दोनों system. ही हैं। Sir, drip लेकिन sprinkler Sir, system. sprinkler system नहीं है. करता है. पानी वेस्ट करता है तो और कोई तो मेथड नहीं है हमारे पास। Yes sir. सर लेकिन ड्रिप सिस्टम हो। सिस्टम है और पानी को रोको। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम जब तुम्हारी फील्ड ऐसे ऐसे होगी ऊपर नीचे, तो स्प्रिंकलर सिस्टम से ही काम चला सकती हो, फिर ड्रिप थोड़ी ना उसमें होगा। Yes. तो ऊपर ऊपर नीचे तो आप स्प्रिंकलर से, और बाकी ड्रिप सिस्टम है। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ आप कि और कोई ऐसा मेथड है जो पानी बचाता हो। Two methods of irrigation in which no water wastage is done. नोट्स में दिया है क्या? मैंने नोट्स दिए, उसमें दो मेथड है, ड्रिप सिस्टम एंड इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम ही दिया है। सो टू मेथड्स ऑफ, सर दो ही हैं. हाँ यही है इरिगेशन, क्योंकि उसमें थोड़े से पानी से पूरे में डाल दिया जा रहा है ना। Yes sir. Two methods of irrigation in which no water is wasted are drip system and irrigation system. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The irrigation system है sir. Hmm? Sprinkler system. That is sprinkler system. Sprinkler system. सर ये है। डिस्कस वाला क्वेश्चन है सर, मतलब इसको नहीं करना है सर। If wheat is sown in Kharif season, what would happen? तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? Sir, it grown सर होगी. ये ग्रोन भी होगी सर, So, ग्रोन sir, भी होगी। it dry because of no water. हाँ, That's what. if wheat is sown in Kharif season, what would happen? So उससे क्या होगा? मुझे इस चीज को कि if wheat is sown in Kharif season, wheat तो हम कब उगाते हैं बताओ? wheat उगाते हैं सर्दियों में, सर्दियों में. लेकिन अगर हम उसे मार्च से अक्टूबर में उगाएं तो सर- मानसी वो कौन सा सीजन है? वो उसमें कौन सी फसल उगती है? हाँ हाँ, वो सही बता रही कि हम तो टेक लगाए थे, हम क्या जाने, टेक से मेरा हाफ ब्रेन तो ऐसे ही बंद है। तो
तो इसीलिए ये एक राज होता है। अगर आप लोगों को भी माइंड कम रखना है, टेक लगा लो, आधा दिमाग खत्म। तो हमने और सबसे तो नहीं पूछा, मुझे मालूम था जो टेक लगाएगा वही नहीं बता पाएगा। तो इट इज इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन, देखो सर खरीफ होता है ना? खरीफ को बोलते हैं रबी, खरीफ, जायद। तो ये सर जायद तो सर वो 2 महीने में सर होती है। if wheat is sown in खरीफ सीजन, खरीफ सीजन कब से कब तक है पलक? सर खरीफ सीजन जून से सितंबर। ठीक है, तो अगर हम ऐसे टाइम पे करेंगे, जून टू अक्टूबर लिखा है, जो भी हो आप देख लेना, सितंबर सर अक्टूबर। ठीक है, तो अगर ऐसा किया जाए then the whole crop might get destroyed, तब क्या होगी? whole crop is destroyed due to excess rain. might, सर जून टू सितंबर देखो, जून टू सितंबर सर। ठीक है, might get destroyed। ये कई रीजंस की वजह से होगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ किस वजह से होगी? ड्यू टू एडवर्स का मतलब आप लोग समझते हो कि नहीं? नो सर। एडवर्स का मतलब विपरीत टेम्परेचर कंडीशन। एक होता है ठंडा टेम्परेचर चाहिए, लेकिन उस समय तो गर्मी होगी। तो एडवर्स का मतलब है कि विपरीत या ऑड, जैसा चाहिए वैसा ना दो एटमॉस्फेयर, तो एडवर्स हुआ कि नहीं? एडवर्स क्लाइमेट, एडवर्स टेम्परेचर और एक्सेस रेन, उसको रेन नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप रेन दोगे गेहूं तो सड़ जाएगा ना सारा। एक्सेस रेन, और इसके अलावा बिकॉज ये सारी चीजें होंगी, बिकॉज व्हीट क्रॉप नीड्स, उसे क्या चाहिए? दैट इज कोल्ड So टेम्परेचर cold temperature. एंड लेस वाटर। बिकॉज व्हीट क्रॉप नीड्स कोल्ड, इसलिए रशिया और यूक्रेन में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, क्योंकि वो सबसे ठंडे हैं। वहाँ तो -23 है, बढ़िया गेहूं होता है, पूरे विश्व का गेहूं का कटोरा खा जाए। सर कौन? रशिया और यूक्रेन, जब से लड़ाई हुई है पूरी दुनिया में गेहूं का अकाल पड़ गया, क्यों सर? क्योंकि वही दोनों गेहूं के कटोरे एक दूसरे के गेहूं में बम बरसा रहा है, और वो बेच ही नहीं पा रहे कहीं। समझ में आई बात कि नहीं? व्हीट क्रॉप नीड्स, हमने सुबह भी बोला आपको ना कि टर्की को हमने गेहूं बेचा था। Yes, हमने sir. कभी नहीं बेचा था, लेकिन इन दोनों की लड़ाई की वजह से हमें बेचना पड़ रहा है, और हम दूने दाम पे बेच रहे हैं। सो व्हीट क्रॉप नीड्स कोल्ड। बोलो जो साउथ के लोग हैं वो राइस क्यों खाते हैं? उनके यहाँ पर डोसा क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ रेंज ज़्यादा होती है, वहाँ ठंडा खाई नहीं, तो वहाँ गेहूँ होता ही नहीं। जहाँ गेहूँ नहीं होगा वो राइस ही तो खाएगा, राइस का डोसा बना के खाएगा, और करेगा क्या? जहाँ ठंडक होती वहीं तो गेहूँ खाया जाएगा। यूपी बिहार में ठंडक होती है, बंगाल में भी ठंडक नहीं होती, वो कोस्टल एरिया है, तो वो भी राइस ही खाए। तो कश्मीर वगैरह में गेहूं बहुत होता है। हाँ, वहाँ गेहूँ की रोटी खाते हैं, गेहूँ ही खाते हैं, वहाँ राइस का कोई रिवाज नहीं है। तो नीड्स कोल्ड क्लाइमेट। सर लेकिन उधर राइस उगते तो होंगे ना? क्लाइमेट, राइस तो उग सकता है, राइस तो थोड़ा बहुत उग सकता है, ज़्यादा पानी दोगे तो उग जाएगा, और बाकी जो दूसरे जो गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी तो दो हो जाएगा। लेकिन ठंडी कहाँ से लाओ? जैसे अब तमिलनाडु में तुम ठंडी ला पाओगे ला क्या? सकती है। क्या कूलर लगा दोगे वहाँ? तो इसलिए ठंडक तो नहीं लाई जा सकती ना, उसके लिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, वो कभी होगा नहीं तमिलनाडु। 10 डिग्री। नीड्स कोल्ड क्लाइमेट एंड लेस वाटर। तो इसलिए खरीफ में नहीं की जा सकती ड्यू टू एडवर्स टेम्परेचर एक्सेस रेन। तो इसलिए द होल क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड इफ वी डू सो। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी पूरी फसल खराब हो जाएगी। अवर होल
crop will get destroyed if we do so. Now, explain how soil get affected by the continuation of crops in a field. तो by continuous, अगर मान लो प्लांटेशन होगा तो क्या होगा? प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स, soil में nutrients हाँ, तो न्यूट्रिएंट्स जो देयर विल बी लेस न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल में क्या हो जाएगा? देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. in the soil. ऐसा क्यों होगा? देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. और इसके बाद क्या हो जाएगी? एंड अल्टीमेटली सॉइल विल बिकम इनफर्टाइल. रेत बन जाएगी, बंजर. अगर तुमने 5-5 फसल उगाई तो तुमको मालूम है कि जो वहाँ पर अमेरिका का एक सिटी है, वहाँ उन्होंने 5 फसलें उगाई थी साल में. 5 गेहूँ, केन शुगर. और वो ज़मीन ऐसी रेत बनी कि 10 मीटर के गुबार उड़ने लगे. ये 3 मीटर है तो कितनी धूल उड़ने लगी? 10 मीटर. तो 10 मीटर उड़ने लगी तो वहाँ पर सबको शहर खाली करके जाना पड़ा. और आज वो भूतों का शहर पैदा था. एक भी घर में कोई नहीं रहता, क्योंकि अब किसी के 3 मंजिल तक गुबार उड़ेगा तो क्या होगा बोलो? तो सिर्फ किस लिए? क्योंकि उन्होंने क्या किया बताओ? 5 बार फसलें उगाए, सॉइल को कुछ दिया नहीं. यहाँ ये जो राजस्थान है ना, ये बहुत हरा भरा था. यहाँ लोगों ने कहा नहीं, काला हिरन तो हमारा पूज्य है. सलमान खान केस लड़ रहा है तो वो हिरन लोगों ने यहाँ की छोटी छोटी घास तक खा डाली. अब जब जमीन में घास भी नहीं रहेगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी? वो पकड़ नहीं रह पाएगी बिना घास के. तो वो रेत उड़ने लगी. अल्टीमेटली ये रेगिस्तान बन गया. तो बड़े रीजंस होते हैं. अगर हम इकोलॉजिकल सिस्टम को थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे तो बहुत उसके कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होते हैं. तो इससे क्या होगा? डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल विल बिकम इनफर्टाइल. एंड सॉइल विल बिकम इनफर्टाइल. ऐसा क्यों होगा? एज क्रॉप टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल. क्यों ऐसा होगा? एज क्रॉप टेक्स nutrients from. तो हमें क्या करना चाहिए? तो so we should give a gap of months or 1 month or 2 so that soil can replenish its nutrients. नहीं तो सर हम मैन्योर फर्टिलाइजर डाल सकते हैं. मैन्योर डाल सकते हो. फर्टिलाइजर से तो उसका जो बाकी चीज़ें हैं कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर हम समय देंगे सॉइल को तो वो नेचुरल रहेगा. यस सर, वो नेचुरल सही तरीके से. जैसे आप देखो, शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ को ले गया था. उसकी शादी की जब वो गया था ना लड़ने के लिए, तो 17 साल हो गए थे उसकी शादी के. और मुमताज़ महल के 17वां बच्चा होने वाला, 17 सन. उसने अपनी वाइफ को रेस्ट ही नहीं दिया. एक के बाद एक बच्चा होता चला गया. और वो 17 बच्चे हो गए, मर गई रास्ते में. बोला घोड़े पे ही मर गई. तो उसे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करना चाहिए कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पर सॉइल के साथ भी वही है. सर तो 9th क्वेश्चन का आंसर इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं बताइए? सो वी शुड गिव गैप ऑफ 1 or 2 months so that soil should get replenished. बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ सर, जैसे सर अगर सर जो हमारी जो सॉइल है अगर वो बालू बन जाएगी तो सर रेत बन जाएगी तो सर उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर काम नहीं करेगा? फिर कुछ काम नहीं करेगा. फिर पानी डालोगे सब परकोलेट होकर जमीन के अंदर चला जाएगा. उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रह जाएगी. जैसा दुबई में भी ऐसा होता है कि वहाँ पर सॉइल काम नहीं करते. तो जानते हैं क्या करते हैं? ऊपर एक लेयर मिट्टी की लगा देते हैं. पहले पॉलीथीन बिछाएंगे, फिर मिट्टी डालेंगे, उसमें खेती करते हैं.
सीधे नहीं डाल सकते, नहीं तो मिट्टी से खट से पानी अंदर चला जाएगा। नीचे तो रेत है ना, तो नीचे उसको तो पानी बहुत चाहिए रेत को। तो पहले पूरे खेत में, वहाँ पर भी पार्क है दुबई में, लेकिन वो पार्क कैसे बनाए गए हैं? पॉलीथीन डाली गई है पूरे पार्क में, और फिर उसके बाद मिट्टी। पॉलिथीन और मिट्टी जहाज़ों में भर के ट्रक से मंगाई जाती है दूसरे देशों से। दुबई से सबको सर, तेल देता है। कितने मीटर तक मिट्टी डाली होगी? मिट्टी 10 सेंटीमीटर। और और मान लीजिए बड़े बड़े प्लांट हैं, तो उनके लिए उसी पॉलीथीन में गड्ढा करके बड़े गमले लगाए गए हैं, वो दिखे ना ऊपर से कि गमले हैं। फिर सर मान लीजिए सर हमने सर थोड़ा सा भी खोदा तो सर वो पॉलिथीन दिख जाएगी। हाँ, खोदना ही हटाओगे तो वो वहीं से पानी चल रहा है। किसी का मन कर उतने में वो बहुत कुछ देते रहते हैं, कुछ ना कुछ ह्यूमस, कुछ ना कुछ केयर बहुत चाहिए होती है, तो ऐसा करके ऊपर पॉलिथीन अंदर सड़नी चाहिए। पॉलीथीन 10-10 साल तक चलती है। आजकल टेरेस गार्डनिंग है, उनके लिए पॉलीथीन आती है, तो बहुत फिर सर उसकी मेंटेनेंस हो। मेंटेनेंस होती है, बहुत कुछ होती है। तो इस तरीके से ना आओ। अब जरा देखिए, आपको 6th 7th 8th क्वेश्चन करना है। देखो 6th 7th करो, पढ़ लो। सर करना है हाँ, अभी करवाएंगे। सर, मतलब सर इतना सर सारा लिखना है हमें। सारा मत लिखना, थोड़ा थोड़ा लिखना जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए। सर कौन सा 5th 7th? 6th 7th और 8th। 6th 7th करो, 8th मत करो। हाँ सर। 8th को मैं 9th के साथ करा दूंगा। चलो पढ़ लो, पढ़ लो। So, 9th question is, what is weed? How can we control them? तो weed क्या होता है? सर weed is unwanted plant by naturally responding. सही कह रही हो। wanted plant Unwanted plant that is grown with our crop. that is grown नेचुरली विथ आवर क्रॉप that are grown like in our field naturally. In our field along with crop in our field, बात ना करें along with crop। तो Sir, crop के साथ उगाते हैं, इसे क्या कहेंगे? Called, सर हाँ। weeds उसको कहेंगे weeds। और इसको रिमूव करने के लिए क्या किया सर जाए? सिकल और weedicide हाँ। 240 सिकल तो हंसिया हो जाएगा। यस सर It's called weeds. So they compete with crops for nutrients। So सर nutrients sunlight water place इन सभी चीजों के लिए करते हैं। So weeds compete with crop। Weeds compete with crops for nutrients, space and light। For nutrients, space and light, इसलिए इनको रिमूव करना चाहिए। सो क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग, हाउ कैन वी कंट्रोल देम? वी कैन, इट इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, या तो हम क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी रिमूव by sickle। कुछ चीजें हम खुरपी की मदद से या सिकल की मदद से मतलब कर सकते हैं कि नहीं? यस सर सो इट, बोलो, होम की मदद से भी होता है ना? हो Yes, से sir. भी Yes, होता है। इट कैन बी रिमूव बाय हो बाय हो और और chemical like खुरपी। और खुरपी खुरपी से भी उखाड़ उखाड़ के, भाई अपरूटिंग, अपरूटिंग का समझते हो? जमीन से उनकी जड़ी हटा दो।
और सर VD और बाय यूजिंग वीडी साइड Side. कोई नाम जैसे सर 240 और बाय वेरी साइड यूजिंग वीडी साइड केमिकल वीडी साइड 24 2,4 लिखना फिर डैश लगा के डी लिखना। Yes, sir. ऐसे ही इसका नाम लिखा जाए, ठीक है। ये चीज होता है। सर बाय स्प्रिंकलर हाँ, तो बाई स्प्रेइंग इट ऑन क्रॉप और तो वो जो अनवांटेड है उसको खराब कर देगा, लेकिन हमारी क्रॉप को बचा देगा। नेक्स्ट देखिए 10 अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर बताइए? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल preparation of soil. तो 5 होगा अरेंज इन ऑर्डर टू मेक द इन प्रॉपर ऑर्डर। सो 5. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को सबसे पहले लिखो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सर देन सोइंग Sowing the field. Plowing the field. अच्छा हाँ, फिर प्रिपरेशन का मतलब समझते हो कि जो बड़े बड़े उसमें पेबल्स हैं उनको तोड़ना, ये सारी चीजें होती हैं कि जो क्रम्बल्स होते हैं यस सर। उनको तोड़ देना। फिर फ्लोइंग द फील्ड, फ्लोइंग क्यों करते हैं? क्योंकि अब हमें सोइंग करना है। फिर क्या करना है? Sowing. सोइंग। फिर Manuring. मैन्योरिंग। सर इरिगेशन Sir, फिर irrigation. फिर इरिगेशन। Sir, harvesting. अच्छा, सोइंग के बाद हम मैन्योर डालना है जिससे कि हमारे सीड्स को मैन्योर मिले। पहले sir. डाल देंगे तो सब वीड्स खा जाएंगे, तो बाद में मैन्योर ऐड करना चाहिए ना। यस सर। और फिर इरिगेशन के बाद सर हार्वेस्टिंग फिर फसल काट लो। Sir, sending. Sir, sending crop to sugar factory. ठीक है, मान लो आपने गन्ने की फसल काट ली तो अब उसको आप शुगर फैक्ट्री भेज दो, गन्ना भेजा जाता है कि नहीं? Yes, sir. तो सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। फिर उसके बाद सर हो गया नहीं है, Yes, 1 sir. 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतना ही कर देंगे। 11th क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, जैसे आप इसका एक वन वर्ड बता दो, प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप। सर इरिगेशन इसमें वन में इरिगेशन लिख सकते हो। सर मुझे आता है बस तो वन में क्या लिख लोगे? Irrigation. इरिगेशन। और यहाँ पर है सेकंड में कीपिंग क्रॉप्स। Sir, storage. सोइंग, तो यहाँ से छोड़कर एक बॉक्स यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ, और फिर SOWING सोइंग हो गया। सर वो स्टोरेज होगा ना। फिर हार्वेस्टिंग। स्टोरेज होगा सोइंग कैसे? अच्छा, अंडर कंडीशन स्टोरेज होगा ये तो, दैट इज स्टोरेज स्टोरेज। और फिर सर क्रॉप Sir, crop. फिफ्थ है कीपिंग प्लांट्स ऑफ द सेम, तो क्रॉप है, Crop. Sir, crop. तो क्रॉप नीचे कहीं आ जाएगा। और यहाँ पर जो इरिगेशन है उसमें 6 में क्या आएगा? Sir. कीपिंग ग्रेन्स फ्रॉम Sir, winnowing. विनोइंग, तो यहाँ पर लिख दो इन और फिर यही क्रॉप लिख दो, जहाँ ओ आ रहा है वहीं पे क्या लिख लो? Crop. क्रॉप। और इसी तरीके से फोर्थ क्या है? रबी क्रॉप, दैट इज आल्सो Sir, gram. ग्राम। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखो GRAM। सर लास्ट वाला हार्वेस्टिंग Harvesting. तो यहाँ लिख दो मशीन है। HAR वेस्ट, दो डोंगे बनाओ, डन हार्वेस्टर है क्या? मशीन ये सर मशीन पूछिए हार्वेस्टर। ओके, नाउ लेट अस कम टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। चलो एक चीज और देखने से हम आगे बढ़ें। क्या
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या बैक्टीरिया ये सब होते हैं। वो है सर दिख सकते हैं हमें हाथ में? हाथ में नहीं, माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। सर इसके कहने का मतलब है अरे सर मेरा नहीं दिख देख सकते हैं उसको, स्लाइड है हमारे पास, तैयार करके दिखा देंगे, कभी दिखा देंगे उसको। अब देखिए कुछ चीजें नाउ feeding fish. Feeding fish. सर हमारे फिश में फिश खाती है ये देखो, वो तो फिश खाती है ये पिसिकल्चर देखो। फिश खाती है सर ये पूरा सर फिश का तेल वाला फिश खाती सर रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये सर आ रहा है। ठीक कर देंगे। ये देखो, मछलियों को कैसे प्लांट में ज्यादा पिसिकल्चर देखो, ये मछलियां हैं ये। इसकी ये इसको दाने में मिला लिया, सर दाना डालेंगे अब दाना मछलियों को दे देंगे। ये तो ऐसे भी छिड़क सकते हैं, देखो ये इसे मिला लेगा, तो पानी में क्यों डाला है? ऐसे भी तो फेंक सकते हैं। ऐसे भी फेंक सकते हैं, पता नहीं क्या प्रोसेस है। ऐसे भी फिश फूड है ऐसे ऐसे ये, ऐसे ऐसे ही डालना है किसमें? सर एक बार पानी में फिर तो गेहूं है। नहीं, वो फिश का फूड है। इसका कैमरा ऑन है, इसको हटा देंगे। ये देखो मछलियाँ, सर ये तो मेरे गाँव में भी ऐसा है। Scenes everywhere, plants and animals. फ्रेंड एंड फोर। कल मॉर्निंग में 9 to 10:30 आपका क्लास है, सर किस सब्जेक्ट का? सर मैथ का? इंग्लिश। तो ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का होगा, वर्ब्स बताएंगे, वर्ब्स की फॉर्म, जेंडर को ट्रांसफॉर्म करना। देना है फोन नंबर, लो, लो। अच्छा मुझे भी देना था। देना है, मेरे ठीक तो है। मेरे गाँव चले गए। आप इसमें भी करना, नाम लिखना। चलो, you have seen several kinds of plants and animals, however there are other living organism। हमारे चारों तरफ कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमें हेल्प मतलब दीज आर बेनिफिशियल फॉर अस। क्या आपको मालूम है कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो आप Yes, दही में खाते हो, Yes, sir. वो हमें योगर्ट भी कभी खाया है आप लोगों ने? यस Yes. तो योगर्ट भी दही का ही एक फॉर्म है, छोटा सा डिब्बे sir, में yes, आता है, उसको आप खा लें तो उससे हमारी बॉडी में एक गुड बैक्टीरिया आ जाते हैं जो हमको लड़ने में मदद करते हैं डिसीजेज से। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर बैड फॉर अस, दे आर हार्मफुल फॉर अस। तो जो अगर हमारे हार्मफुल है उनको फो कहेंगे, और जो हमारे लिए बेनिफिशियल है Sir, friend, उनको friend. फ्रेंड्स कहेंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हमारे फील्ड्स में भी रहेंगे, तो फील्ड्स में वो बेनिफिशियल है और कुछ हार्मफुल भी हैं। हाँ ठीक है, तो फॉर देम वी आर सीइंग सो लिविंग ऑर्गेनिज्म which we cannot see and which are living around us but we cannot see are called
माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, जिन्हें आप देख नहीं सकते, बट दे आर सो टाइनी। समझ में आया? सो व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म around us which we cannot see are called microorganism. ऑर्गेनिज्म का मतलब तो जीवित चीज होती है, और माइक्रो का मतलब छोटा, और उन्हें दूसरा नाम क्या है? बैक्टीरिया। माइक्रोब्स। उसी के ही अलग अलग फॉर्म है, बैक्टीरिया, वायरस, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, मोनेरा, फंगी, वो सब हम देखेंगे ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो ब्रेड होती है वो सड़ जाती है और उसमें ग्रीन फंगस आ जाती है, तो वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? तो उसे ब्रेड माउल्ड कहते हैं ना। और भी कई तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। Let us see that which kind of microorganisms are there around us. देखो, लाइक एक्सटीरियर वॉल की सीपेज से परेशान? सिर्फ बिरला वाइट से बनाते कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन और बचाए आपकी रेपुटेशन। ये दिखने में बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे ये क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आपको बताता जाऊँगा। तो ये क्या करते हैं, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे घड़ी चल रही है। अभी देखा आपने? यस सर। है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा। हाँ, और अगर आपको देखना है कि बैक्टीरिया बड़ा कर दिया जाए तो कैसा दिखेगा, तो बैक्टीरिया ऐसा दिखेगा। और बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, तो ऐसा उसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल होगी, जीन। बैक्टीरिया सेल के अंदर ही होता है। बैक्टीरिया एक ऐसा एक सेल, सिंगल सेल को बैक्टीरिया, एक सेल का है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, तो ये बैक्टीरिया। समझ में आ गया? तो ये बैक्टीरिया हो गया, इसको आप लोग देख रहे हैं। एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, ये कोरोना वायरस। सर इससे तो हालत खराब होती है। हाँ, तो ये उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, तो ये वायरस है, इसको भी देख लो, अभी दिखा दीजिए। ऐसे ही वहाँ पर भी दिखाया गया। तो कोई चीज खा रहा है, ये देखो अंदर खाना आपके डालना है। और देखें ये सब क्या है? सर हमें भी इसके साथ। हाँ, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ खा सकते हैं। लेट अस सी ए बेटर वर्जन ऑफ इट। ये देखो, ये क्या है? आप लोग पहचानते जाओ। अभी रुक जाओ। ये क्या है बोलो? पैरामीशियम। चेक करो जो टीवी पे चल रहा है। तो पैरामीशियम गंदे पानी में पाया जाता है। फ्रूट पे बैठने वाली फ्लाई है, हम देख नहीं पाएंगे लेकिन वो फ्रूट को सड़ा देगी। ये देखो, ये क्या है? सर ये तो फंगी थी। फ्रूट फ्लाई। ये समझ पा रहे हो क्या? ये यूग्रीना नीचे लिखा है, ग्रीन कलर का होता है। पानी को कभी हरा ना देखा है? गंदा पानी, तो उसमें यही एल्गे होता है, यूग्रीना होता है। और देखो, मीट को सड़ाने वाला मीट मोल्ड, ऐसे उगाना मीट पे उगाएगा। फंगस ही है, ये ब्रेड पे भी आ सकता है, मीट पे भी आ सकता है। ये देखो, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे। चेक करो, ये सिर्फ बहुत छोटे छोटे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स, ये देख लीजिए, ये रेड ब्लड सेल्स। कुछ नहीं, ये
नॉन न्यूक्लियर सर ये डोनट जैसा है। व्हाइट ब्लड सेल देखो, इसके अंदर न्यूक्लियस है। सर ये क्या है? व्हाइट ब्लड सेल हमारे अंदर ये लड़ने में मदद करता है। ये इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिखेंगे नहीं, टीवी में देखो हाइड्रा, हाइड्रा भी हमारे पास है, दिखा देंगे आपको। ये हाइड्रा बहुत छोटा सा होता है, इतना छोटा है कि ध्यान से देखना पड़ेगा। हाइड्रा, सो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गंदे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, सर माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोप से हम दिखा देंगे। और ये देखो, ये क्या है बताओ? पानी में लच्छे लच्छे मिलते हैं, स्पाइरोगाइरा। उठाओगे तो लच्छे लच्छे मिलते हैं, स्पाइरोगाइरा। ऐसे आप उठाओगे तो बहुत सारे पानी में काई सी जमी जाएगी, वो ठीक है। ठीक है, लो। तो ये बैक्टीरिया हो गया, बात समझ में आ गई? वो WBC हो गया। सर आरबीसी RBC इन्हीं में से किसी के पास होगा। तो कल 9 बजे आ जाइएगा। ये ऐसे और भी सारी चीजें, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ रहते हैं, उनके डिफरेंस है। ओके, थैंक यू। प्रेजेंट मैम। लो, एब्सेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। सर वीडियो ऑन है। ओके, प्रेजेंट मैम। वीडियो ठीक है। बाय सर, थैंक यू। बाय। साइंस निकालिए।